So hello guys, welcome back to my channel. It's official, and yes, today I'm there with you with FDS unit number 1. Yes, this will be part 2. Okay, so I hope you have seen part 1 and have understood many of the things related to the unit, and I'm sure that you have done all the homeworks and all the questions which I have told you to do. Okay, so now this is the part 2, and in this we will cover the further topics. And now the unit is very simple for you to understand. Only the one thing is that it is of step count which you need to understand, and the rest of the thing which is going to cover in this particular lecture will be very easy. ठीक है, so please अच्छे से focus करना, and अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो please go and subscribe the channel and share to your friends. ठीक है, so in this particular video, first we will see what we have seen in part 1. Okay, so I hope you all have seen part 1 and then you guys are coming to this video. ठीक है, syllabus में हमारा कहाँ तक हो चुका है, हमारा algorithms तक सब कुछ हो चुका है, राइट। अब pseudo code क्या होता है? pseudo code यानी कि आप अगर अपने जैसे अल्गोरिदम आप लिखते हो सेम वैसे ही, लेकिन आप अगर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग के वर्ड्स भी अगर उसमें ऐड कर रहे हो, सो दैट कम्स इनटू योर स्यूडो कोड। ठीक है, तो आप वैसे भी आप लिख सकते हो, एंड फ्लो चार्ट ऑल्सो। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको स्यूडो कोड भी लिखना है तो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट गो फॉर द अल्गोरिदम ओनली। बट जैसे कि हम अल्गोरिदम के अंदर हम ऑपरेशंस नहीं लिखते, लाइक सी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं लिखते हैं, राइट। वो स्यूडो कोड में आप सी इक्वल टू ए प्लस बी इस फॉर्मेट में सम को लिख सकते हो। सो दैट इज द ओनली थिंग डिफरेंस बिटवीन अल्गोरिदम एंड स्यूडो कोड। अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू ईच ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। एंड देन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दे दी है, सारे की सारे क्लासिफिकेशंस भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। नाउ इफ यू सी दिस पेज, द हाफ पेज इज ऑलरेडी डन। नाउ वी हैव टू सी द complexity of algorithm and algorithmic strategy. So I hope कि आपको सब कुछ बहुत easily समझ में आ रहा है, and if you have any single minute doubt you can go and please tell me in the comment section, so I can make you all concepts very clear. ठीक है, तो ये है, आपने देखा था अभी मैंने ये सारे definitions आपको बताए थे, data structure भी आपको बताया, and the need of data structure. See this small things, this come in what? This come in your paper. ठीक है, so that's why you have to learn these things. And many people they know what is data structure, they know what is data, they know what is the definition, but they don't know what is the need of data structure. They write from their own and that becomes a means problem. Why? Because these are the main things, and if you include these things ना, तो यही की पॉइंट्स जो है वो एग्जामिनर ढूंढते होते हैं। एंड अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ, so that will be reduction in your marks. Okay, so this is the thing. टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा, दिस इज द वेरी स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एवरी डेफिनेशन, एंड दिस लीनियर एंड नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मतलब एक बार तो पढ़ के जाना। देन स्टैटिक एंड डायनामिक, पर्सिस्टेंट, एफेमरल, एंड रिलेशनशिप among data structure and algorithm. Then we go and dived into algorithm. So I have told you about problem, the steps in problem solving. Then two types, that is algorithm and flowchart. You can also include pseudocode here, but pseudocode, as it is similar to algorithm, you can make changes of it. Okay, so this is the thing. And about algorithms also, I have told you many characteristics. See, these characteristics can come in your exam, so please don't take these things lightly. I have included all the topics which are important. Okay, I have not included any of the thing which is extra. So you have to do, and like this I have told you about the algorithm of this adding two numbers and showing result, and also I have included what? Flowchart and pseudocodes definitions, and I have explained you about flowchart, and these are the examples. Then I have told you to give the answer for this. I am waiting for those who have answered. I will pin their comments. Okay, जिनका answer correct होगा, I will pin their comments in that particular video of part 1. Okay, so please go and please don't skip this part, as people they skip the part which ever मतलब कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो people just skip that thing. Don't do like that. I'm asking you, so I'm making you means think about that. Okay, so please do and attempt this. Then this is the another algorithm and flowchart which I have told you, and yes, this thing and this question also. Okay, so this also I have told you. Otherwise answer is here. I'm not telling you to don't see the answer. I am telling you to just think about it. Okay, then you have to see this and you can be familiar with this. Okay, then okay, this all things we done. Now this is the topic from which I have to start today.
सो दैट इज डिफरेंट अप्रोचेस टू डिजाइन अल्गोरिदम्स। ठीक है, तो अल्गोरिदम हमने देख लिया, अल्गोरिदम कैसे लिखते हैं या कौन से स्टेप्स होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, सब सारी चीजें हमने देख ली अल्गोरिदम की। नाउ डिफरेंट अप्रोचेस टू डिजाइन अल्गोरिदम, अगर हमें अल्गोरिदम को डिजाइन करना है, सो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस, हम क्या कैसे किस फॉर्मेट में सोच सकते हैं, राइट। सो दो ही टाइप के अप्रोच है एल्गोरिदम के अंदर, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच। ठीक, सॉरी बॉटम अप अप्रोच। सो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, देखो मैंने दोनों को बहुत इजीली, बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में डिवाइड किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, एकदम टॉप यानी कि आप लार्जर प्रॉब्लम समझो। ठीक है, लार्जर प्रॉब्लम को आप डिवाइड करते 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 आप स्मॉलर पार्ट में लेकर आ गए, एंड दैट इज व्हाट योर टॉप डाउन अप्रोच, और कुछ भी नहीं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू डाउन। ठीक है, जो इसका एग्जीक्यूशन होता है बस वो भी टॉप से ही स्टार्ट होता है टिल डाउन। एंड इसका एग्जांपल अगर हम देखने जाए तो सी जो है, सी लैंग्वेज, इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच लैंग्वेज। ठीक है, अब मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन हम लिखते हैं ना, इंट मेन, वॉइड मेन, सो वो मेन फंक्शन जो है वो बिगनिंग में ही लिखा जाता है। सो दैट इज योर टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, स्मॉलर पीसेज आर कंबाइंड टुगेदर, यानी कि कुछ स्मॉल चंक्स हैं आपके पास कोड्स के, एंड यू आर कंबाइनिंग देम फॉर डूइंग अ मोर लार्जर कोड। ओके, यू आर डूइंग इट फॉर मोर बेटर प्रोग्राम। सो दैट इज योर बॉटम अप अप्रोच, दैट एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देन C++ is again your bottom up approach language. Okay, then int main, that is your main function, is written at the end of the program. So this is the top down approach and bottom up approach. ठीक है, you can find out more languages which are top down or bottom up approaches. ठीक है, so this is different approaches. Please keep in mind what are different approaches. ठीक है, मैं आपको बहुत सारी चीजें related to algorithm बताऊंगी अभी, तो प्लीज आपको ये वर्ड याद रखना है, otherwise you will be jumble up within the things. सो डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स, एल्गोरिदम एनालिसिस। देखो अब एनालिसिस करना है हमें एल्गोरिदम का, तो उसके अंदर कौन सी दो एनालिसिस है, प्रायोरी एनालिसिस एंड पोस्टीरियर एनालिसिस होता है। ठीक है, तो प्रायोरी एनालिसिस क्या है, दिस इज अ थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, ये क्या है, थ्योरेटिकल एनालिसिस है, यानी कि आप जो एल्गोरिदम बनाते हो, ठीक है, एल्गोरिदम आपको जब बनाना होता है तो एल्गोरिदम से पहले आप कुछ ना कुछ सोचते होगे, आप अपने माइंड में कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते होगे, दैट इज नथिंग बट योर प्रायोरी एनालिसिस। ठीक है, इसको प्लीज अच्छे से समझना, दिस इज अ थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, थ्योरेटिकली आप इसको एनालाइज करते हो। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज मेजर्ड बाय अज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर स्पीड, आर अ कांस्टेंट एंड हैव नो इफेक्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल जो ज्यादातर फैक्टर्स है ना, उनको क्या करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, लाइक प्रोसेसर की स्पीड हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके मतलब नॉर्मल फॉर्मेट में है या नहीं, कांस्टेंट है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल द थिंग्स व्हिच यू डू इन before writing your algorithm. ठीक है, also before analyzing a thing, so this is the prior analysis. prior का word क्या होता है, पहले, है ना, प्रायर का मतलब क्या होता है, पहले। तो एनालिसिस से पहले कुछ ना कुछ बेसिक थिंग्स जो हम ध्यान में रखते हैं, सो दैट इज नथिंग बट योर प्रायर एनालिसिस। देन व्हाट इज इट, इट इज अ पोस्टीरियर एनालिसिस। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो यहाँ पर पोस्टीरियर आई एनालिसिस भी समझ सकते हो। ठीक है, पोस्टीरियर आई एनालिसिस। सो ये क्या है, ये एक एनालिसिस है जो कि आपका आप एल्गोरिदम लिखने के बाद एनालाइज करते हो। ठीक है, सो दिस इज एन एम्पायरिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। द सिलेक्टेड एल्गोरिदम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सिलेक्टेड एल्गोरिदम, राइट, आपने जो भी एल्गोरिदम लिखा है उसको आप कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंप्लीमेंट करते हो। देखो एल्गोरिदम जो आप लिखते हो दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, आप चाहो तो उस हिसाब से लिख सकते हो। अगर आपको सपोज C++ के अंदर ही लिखना है तो यू कैन डू दैट फॉर्मेट, बट मोस्टली जो कि नॉर्मल फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट है एल्गोरिदम का, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इट इज नॉट लाइक which can define a particular programming language. Okay, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप C++ के लिए एक एल्गोरिदम लिख रहे हो which is for factorial for example, and आप दूसरा लिख रहे हो, दूसरा एल्गोरिदम लिख रहे हो which is for another programming language, but the topic is same, that is factorial. So that is not the thing. That particular factorial algorithm should be same for all the programming languages, maybe C, maybe C++, maybe Java, maybe any programming language. Okay, so that is what
what is done in your posterior analysis. ठीक है, so this is what empirical analysis of algorithm. Selected algorithm is implemented using the programming language. This is then executed on target computer machine. In this analysis, actual statistics like running time and space required are collected. यानी कि क्या एनालाइज करके हम क्या चीज कलेक्ट करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स कनेक्ट करते हैं कि कितने टाइम में हमारा एल्गोरिदम जो है वो रन कर रहा है, हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है, एंड स्पेस रिक्वायर्ड, कितनी मेमोरी वो जो है स्टोर करने में हमें जा रही है, राइट। So this is done in posterior analysis. So I hope मैंने बहुत अच्छा टाइम लेके इसको आपको एक्सप्लेन किया है. That is not a very important thing, but yes you have to know it. क्योंकि कभी भी पूछ लिया अगर prior analysis related to क्या है अगर, तो इतना तो बताने आना चाहिए कि it is related to algorithm. ठीक है, तो prior and posterior है, बस इतनी चीज याद रखो कि prior analysis जो algorithm लिखने से पहले आपको सोचना है, and posterior analysis जो है वो आपको algorithm लिखने के बाद जो है वो सोचना होती है. ठीक है, so this is the algorithm analysis. Now केसेस ऑफ एनालाइजिंग एल्गोरिथम. ठीक है, तो जो केसेस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो जो केसेस हैं, 3 केसेस है हमारे पास एल्गोरिथम को एनालाइज करने के, वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम कैसा है. ठीक है, तो 3 केसेस होते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस. ठीक है, तो ये 3 ही बेस्ट आपके जो है केस होते हैं. तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल अप्रोच है. बेस्ट केस क्या होता है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि आपने जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम को लिखा है, ठीक है, आपने जितना भी उसको सोच के आपने लिखा हुआ है, दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज रनिंग इन बेस्ट टाइम एंड यू आर गेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन बेस्ट टाइम. सो दैट इज व्हाट योर बेस्ट केस. मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है. ठीक है, आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें 1 से 10 तक आपने जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 till 10. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जो है आपका इंटरप्रेटर काम कर रहा है सपोज. ठीक है, एंड ऊपर से टॉप टू डाउन इट इज वर्किंग. नाउ आपको कौन सा ढूंढना है, आपको लिस्ट में नंबर कौन सा ढूंढना है, आपको सपोज ढूंढना है 1. ठीक है, आपको 1 ढूंढना है. तो आपका जो भी आप अगर सर्च करते हुए, सपोज आप ही सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप अगर सर्च करते हुए आओ, आपके पास 1 to 10 नंबर्स हैं, आप सर्च करते हुए आओ, मुझे 1 कहाँ मिलेगा, तो स्टार्टिंग में ही आपको 1 मिल गया है ना, तो आपको आगे जाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी डेफिनेटली. सो दैट इज व्हाट योर बेस्ट केस. ठीक है, सो दैट इज योर बेस्ट केस. एवरेज केस की अगर मैं बात करूं, तो एवरेज केस में क्या होगा, सपोज यू हैव टू फाइंड नंबर 5. ठीक है, आपको 5 नंबर को जो है वो मतलब ढूंढना है अपनी लिस्ट के अंदर. तो व्हाट यू कैन डू, आप ऊपर से आ रहे हो, टॉप से आ रहे हो, तो व्हाट यू विल डू, आप 1 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है, ठीक है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है. ठीक है, 5 अब आपको मिला है. कौन से स्टेज पे आपको आके मिला है, मिडल स्टेज पे, एवरेज स्टेज पर आके मिला है. इसका मतलब आपका जो टाइम है वो हाफ ऑफ द टाइम आपको वहां पर लगा है. पहले बेस्ट केस में आपको टाइम लगा था क्या, बिल्कुल नहीं लगा था. दैट इज मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड. एवरेज केस के अंदर आपको एवरेज टाइम लगा है. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. अब वर्स्ट केस के बारे में हम बात करें, तो वर्स्ट केस में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि आपकी वो लिस्ट जो है 1 से 10 नंबर में, आपको अब जो ढूंढना है वो आपको 10 नंबर ढूंढना है. ठीक है, उस पर्टिकुलर लिस्ट में आपको 10th नंबर ढूंढना है, आप ढूंढते हुए आ रहे हो 1 से, तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, लाइक दैट एकदम एंड में आपको एक नंबर मिलता है जो कि आपको ढूंढना था. So that will be the worst case and that will be the stage where you will require maximum time. ठीक है, so these are only the cases and please इनको इसी सिंपल फॉर्मेट में ही याद रखो, बिल्कुल ज्यादा इनको जो है कॉम्प्लिकेट मत करना. ठीक है, so I hope समझ में आ गया होगा. Then standard measure of efficiency. ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे डेफिनेशंस भी पूछे जा सकते हैं, आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, कोड आपको बेसिकली प्रोग्राम आ जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टेप काउंट. ठीक है, स्टेप काउंट भी क्या होता है वो सब हम देखेंगे. So there are 2 important complexity measures. ठीक है, तो 2 ही आपके पास complexity measures होते हैं, एक तो टाइम complexity और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो ये चीज याद रखना. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है. जैसे कि अभी यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पर भी हमने कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड ही देखा ना, वर्स्ट, बेस्ट, एवरेज. सो दिस इज द थिंग. सो कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स के अंदर 2 ही टाइप आते हैं आपके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ गिवन प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर साइज इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सिंपल वर्ड्स में आपको कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको एग्जीक्यूशन के लिए.
समझ में आ गया? द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ गिवन प्रोग्राम और प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर साइज, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें कितना टाइम लग रहा है फॉर एग्जीक्यूशन। क्लियर? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली वही है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो आपके मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ले रहा है ना। द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर साइज इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इन डेफिनेशंस को हम लिख तो देते हैं, बट एक वर्ड जो हम मिस कर जाते हैं वो है ये पर्टिकुलर साइज। ठीक है, तो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। डेफिनेशन को ऐसा नहीं है सिंपल बोल के छोड़ देना है कि हम लोग याद जो भी वहां पर है बना के लिख देंगे एग्जाम में। नो, यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर साइज मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब आपको जाके उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन आई एम रिवाइजिंग, द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ गिवन प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर साइज इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर साइज इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? नाउ जैसे हमने अभी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी, वैसे अब हम स्पेस एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे। टाइम एफिशिएंसी, स्पेस एफिशिएंसी, दोनों भी चीजें सेम ही है ना। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भाई? हमने एसएमई पढ़ा हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में सबने एसएमई पढ़ा हुआ है, तो वी ऑल नो व्हाट इज एफिशिएंसी। इनपुट अपॉन आउटपुट एफिशिएंसी होता था, वो साइड में रख दो। अभी आपको याद रखना है टाइम एफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट। ठीक है, ये क्या है? मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे? यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम की। देखो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम की बात की, यहाँ पर भी हमने प्रॉब्लम की बात की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्गोरिदम की। ठीक है, सो द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट। स्पेस एफिशिएंसी वही चीज है, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड फॉर एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट। यहाँ पर एक बस वर्ड है देखो, रिक्वायर्ड, और यहाँ पर मेजर। तो बस इतनी डिफरेंस आपको याद रखनी है। अगर दोनों भी डेफिनेशंस आ गए आपको एक बार में लिखने के लिए तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं स्टेप काउंट के ऊपर। देखो हमें इनसेम का पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो अगर आप जब बोलोगे ना, तो देखो इनसेम का जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेप काउंट के लिए भी आपको क्वेश्चन आता है। स्टेप काउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप काउंट क्या है? बेसिकली हर स्टेप पे आपको कितनी बार एग्जीक्यूशन होगा उस पर्टिकुलर स्टेप का, दैट इज नथिंग बट द स्टेप काउंट। ठीक है, तो बस एकदम सिंपल वे में आप इसको याद कर लेना। क्या देखो, ये एक जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर ये हमें क्या दिया हुआ है, ये एक हमें प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसमें आपको बोल दिया है कि आपको हर स्टेप का जो है स्टेप काउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? एल्गोरिदम है सम। ठीक है, इसको क्या कैसे लिखोगे? ये है आपका ए, जो कि ये क्या है? ये एरे है। ठीक है ना, इसको एरे बोलते हैं हम। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया हुआ है, राइट? एग्जांपल मैंने जो आपको VS कोड में करके दिखाया हुआ है, एरे कैसे क्रिएट करते हैं। एंड एन, ठीक है, ये दो चलो वेरिएबल्स है, तो ये वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद आपके कर्ली ब्रेसेस आ गए, सम इक्वल टू 0। ठीक है, सम इक्वल टू 0। देखो सम इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि हमने सम जो वेरिएबल है उसको इनिशिएट किया है। ठीक है, सम जो वेरिएबल है उसको इनिशिएट किया है। ठीक है, तब हम इनिशिएशन कितनी बार करेंगे? पूरे प्रोग्राम में क्या बार बार इनिशिएशन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ स्टार्टिंग में इनिशिएशन दे दिया हमने, बस बात खत्म। एक बार मेरे प्रोग्राम ने समझ लिया कि सम इक्वल टू 0 से इनिशिएट होगा, तो बार बार वो उसी स्टेटमेंट पर नहीं जाएगा। ठीक है, जाएगा लेकिन सिर्फ एक बार। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो है ये आपका एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ गया? ये जो है एल्गोरिदम सम, ये क्या आपका मतलब कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, ये मतलब ठीक है, समझ में आ गया कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन में इसका कोई हेल्प है? नहीं, तो इसको भी 0। कर्ली ब्रेसेस का कोई हेल्प है जो कि एग्जीक्यूशन में आपको दिखने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, तो अगेन 0 स्टेप काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर लूप लगाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर लूप। i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 0, i प्लस। ठीक है, या आप i प्लस प्लस समझ लो। ठीक है, यहाँ पर i प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या करना है? देखो यहाँ पर आपको एक फॉर लूप दिया हुआ है जिसके अंदर आपको सम इक्वल टू सम प्लस ए आई करना है, यानी कि एरे में जो भी है वो आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। चलो जो भी इसका लॉजिक है, कीपिंग इट अपार्ट, हमें क्या करना है? स्टेप काउंट को कैलकुलेट करना है। हमेशा एक चीज याद रखो, जो फॉर लूप है, ठीक है, उसके लिए मैं अभी आपको जो है 4 चीजें बताऊंगी। ठीक है, 4 चीजें बताऊंगी फॉर लूप की। एंड देखो
इधर क्या केस है, i इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, i जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड i इज लेस देन इक्वल टू n आपको दिया हुआ है एंड i प्लस प्लस बोला है, ठीक है, i प्लस प्लस बोला है। तो यहाँ पर जब लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n होगा तब आपका आएगा n प्लस 2। हाँ ये गलत है, यहाँ पर n प्लस 1 जो है वो गलत है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 2 लिख लो प्लीज, ठीक है, 2 लिख लो यहाँ पर, ये जो है ये पूरे इसमें आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है, ठीक है, 2 लिख लेना है। यहाँ पर क्यों लिखना है, देखो 2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन एंड इक्वल टू, जब लेस देन इक्वल टू लेस देन n रहेगा ना, जब लेस देन n रहेगा तब आपका जो आंसर आएगा वो n प्लस 1 करेक्ट आएगा, ठीक है। n प्लस 1 कब करेक्ट आएगा, देखो प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स। जब आपका फॉर लूप है i इक्वल टू 0 से इनिशिएट हुआ, i लेस देन इक्वल टू n अगर हुआ तब आपको n प्लस 2 लिखना है स्टेप काउंट, ठीक है। लेकिन जब i लेस देन n हुआ, इक्वल टू साइन नहीं होगा उस वक्त, तब आपको क्या लिखना है, तब आपको लिखना है n प्लस 1। समझ में आ गया, जब i लेस देन इक्वल टू n होगा तब n प्लस 2, जब i लेस देन n होगा तो n प्लस 1। क्लियर। अब एक और चीज, अब यहाँ पर तो n दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर तो n दिया हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर कोई नंबर दिया हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखो ये वाला जो फॉर लूप है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है i इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। जब यहाँ पर आपको 5 दिया जाएगा, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी, तब आपका जो स्टेप काउंट होगा वो 5 होगा। यहाँ पर इन दिस केस आपका स्टेप काउंट 5 होगा, प्लीज याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाते हैं किसके अंदर, एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से समझो, ठीक है। सो आई होप कि स्टेप काउंट का इतना जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये जो है ये आपको 0 रहेगा, है ना, ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये भी 0 रहेगा, कोई एग्जीक्यूशन में इनका काम नहीं है, बस सिंटैक्स है। सम इक्वल टू 0, हाँ ये आपका जो कंपाइलर है ये एक बार देखेगा सम इक्वल टू 0 की, हाँ इनिशिएट करना है तो एक बार इनिशिएट करेगा। अब ये जो फॉर लूप है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए n प्लस 2। देखो यहाँ पर ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बट आप समझ लो, ठीक है, प्लीज समझ लो इसको अच्छे से। यहाँ पर आपको लिखना है n प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर मैं सर्कल कर दूं चाहे तो इसको, यहाँ पर आप लिखना n प्लस 2। अब मैंने आपको कौन सी केसेस बताई, ये जो केसेस है ना ये मेरे पास पिक्चर है, इसका फोटो मैंने खुद ही लिखा है, ये फोटो मैं क्लिक करके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो जो लिंक है टेलीग्राम की वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप जल्दी जाके देख लेना, ठीक है। तो आपको जो इजीनेस है ना वो समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर इफ एल्स अगर होगा ना, इफ एल्स तो आपका स्टेप काउंट कितना होगा, प्लीज मुझे बताओ। इफ एल्स अगर आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पर नहीं है, प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस। इफ एल्स अगर आपका इंस्ट्रक्शन होगा तो स्टेप काउंट क्या होगा, जब इफ एल्स होगा, यानी कि या तो आपका इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी या तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना। तो अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हम बोल सकते हैं कि इफ है तो 1 और 0, है ना, या एल्स 0 होगा उस केस में। अब अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ 0 होगा एल्स 1 होगा, लाइक दिस। तो अब इफ एल्स तो एक ही इंस्ट्रक्शन है ना, तो उसको आप क्या लिखोगे, स्टेप काउंट 1 और 0 या फिर 0 और 1 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये है आपका किसका, इफ एल्स का, ये मैंने आपको बता दिया। इनिशिएशन का हमेशा 1 होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फॉर लूप का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के अंदर, इसीलिए जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा फॉर लूप आपको उसके अंदर दिखेगा। लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो तो आपको स्टेप काउंट के जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपको फॉर लूप दिखेगा ही दिखेगा। तो बस इतनी चीज याद रख लो कि जब लेस देन इक्वल टू होगा तो आपको n प्लस 2 लिखना है, जब लेस देन n होगा तो आपको n प्लस 1 लिखना है, एंड जब लेस देन आपका जो भी कांस्टेंट नंबर है, तो सपोज यहाँ पर जैसे 5 है तो आपका स्टेप काउंट होगा 5, जो भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर 2 होगा तो स्टेप काउंट 2 होगा। समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब जब फॉर के अंदर फॉर होता है, नेस्टेड लूप होता है, तब जरा सोचो क्या चीज होगी, क्या कंडीशन फॉलो होगी। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये n टाइम्स n जितना है ना, ये देखो ये फॉर लूप का मतलब क्या है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो कितने टाइम्स, ये जो फॉर लूप है कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, है ना, इसका मतलब ये है। स्टेप काउंट आपका क्या बताता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो n नंबर है ना, हम क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अंदर सम कर रहे हैं n नंबर्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी नंबर, सपोज आप 5 इनपुट ले रहे हो,
सपोज आप 5 इनपुट ले रहे हो तो ये जो है आपका i लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब कि ये 0 से लेके 5 तक जाएगा, है ना। लेस देन होता तो 4 तक जाता, सही बात है। तो लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 5 है ना। तो आपका 0 से 5 तक जाएगा ये, है ना। 0 से 5 तक जाएगा तो अगर मैं नंबर्स देखने जाऊं तो 0 1 2 3 4 5, ये तो समझ में आ गया मुझे 5 है। लेकिन ये एक बार और जाएगा 6 तक जाएगा और तब जाके क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन फॉल्स होगा, है ना। चेक तो करेगा ना 6 को, ऐसा थोड़ी है कि चेक ही नहीं करेगा 6 को, 5 तक ही जाके रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ये 6 तक भी जाएगा 6 को। लेकिन आपका जो 6 की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया आपको। सो ये जो कंडीशन है इस वजह से यहाँ पर जो होता है n+2 होगा आपके इक्वल टू वाले केस में, एंड लेस देन वाले केस में आपका क्या होगा, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 5 तक जा रहा है। सपोज अब आप कंडीशन लो i लेस देन 5 वाली, ठीक है। i लेस देन 5 वाली कंडीशन आप अपने दिमाग में रखो। तो आपका जो फॉर लूप है वो कितने नंबर एग्जीक्यूट करेगा, 0 1 2 3 4, है ना, जब लेस देन 5 होगा तो आप अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो काउंट ऑन योर फिंगर्स 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक। तो आपके कितने काउंट हो गए, 5 काउंट हो गए, नहीं हो गए, बस। तो कितने टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, n+1 टाइम्स। समझ में आ गया क्या बात हो रही है। तो बस इतना ही आपको समझना है, या फिर अगर आपको अभी भी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है तो प्लीज वो जाके जो मैं अभी आपको फोटो भेज दूंगी ना टेलीग्राम पे, बस उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। प्लीज उसको अच्छे से देख लेना, तब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड बस इतनी ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर फॉर लूप है एंड i लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाटएवर में भी अगर कांस्टेंट नंबर है तो वो कांस्टेंट नंबर ही आपका स्टेप काउंट होगा, ठीक है। अब लेस देन n है, n अगर आपका जैसे ही आपके स्टोरी में आ जाता है तब आपको फॉर के अंदर n+1 ले लेना है, एंड जब लेस देन इक्वल टू n आएगा तो n+2 ले लेना है, बस बात खत्म। अभी मैंने 2 मिनट पहले एक बात करी थी नेस्टेड फॉर की, ठीक है। नेस्टेड फॉर जहां पर हम यूज करते हैं तो फॉर के अंदर फॉर होता है ना, फॉर के अंदर फॉर होता है तो उसका स्टेप काउंट क्या होगा, ठीक है। वो चीज आपको जरा सोचनी है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, प्लीज थोड़ा सा थिंक करना उसके ऊपर, ठीक है। चलो तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला एग्जांपल जो है इसका भी देखो यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर ये सम इक्वल टू सम प्लस ai, यानी कि अब ये वाला जो है ये सम है ना। तो ये जितने नंबर देगा वो इतना यहाँ पर मतलब अपना जो एग्जीक्यूशन है वो करेगा। सपोज यहाँ से मुझे कितने नंबर आए, कितनी बार नंबर आए, 0 पे चला, 1 पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला, 4 पे चला, 5 पे चला, राइट। तो ये सिर्फ जितना जो आपके n होगा ना उतना ही ये एग्जीक्यूट होगा, तो इसीलिए इसका जो स्टेप काउंट है वो n है। समझ में आया, ओके। अब ये जो है ये भी करली ब्रेस का 0 होगा। रिटर्न सम, रिटर्न मतलब जो आंसर है सम वो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये कितनी बार रिटर्न करेगा, 10 बार तो रिटर्न करेगा नहीं ना, एक ही बार रिटर्न करेगा, तो ये आएगा आपका 1, ठीक है। एंड ये करली ब्रेस का 0। अब ये जो पूरा आपका ये स्टेप काउंट के टेबल में आ गया है ना, इसको पूरे को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है, तब आपका फाइनल स्टेप काउंट आएगा। तो देखो यहाँ पर है 1, इधर आ गया 1, प्लस n+2 करना, प्लीज n+2 करना यहाँ पर प्लस n एंड यहाँ पर प्लस 1। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका होगा, ये नहीं होगा, प्लीज इसको मत देखो, ठीक है। प्लीज आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है, मुझे बताना है क्या होगा इसका आंसर। बेसिकली यहाँ पर n+2 ही तो आएगा, तो 2n प्लस यहाँ पर 1 + 2 कितना होगा, 3 + 4, यानी कि 2n + 4 आएगा इसका आंसर, राइट। तो प्लीज अच्छे से आपको इसको करके देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे तो स्टेप काउंट इसका कितना होगा, इसका होगा 0, इसका होगा कितना 1, इसका होगा कितना, इसका कितना होगा गाइस, इसका होगा 5, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। एंड इसका क्या होगा, इसका भी होगा 5, है ना, इसका भी होगा 5 एंड इसका होगा 1, ठीक है। करली ब्रेसेस का आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि वो पता होता है कि 0 ही होता है। आपको एग्जाम में अगर मेंशन करना है तो करो, अदरवाइज नहीं भी करा तो इट्स ओके। एंड ये क्वेश्चंस तो आप देख लो, यहाँ पर ये 4-4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, बस आपको इतने स्टेप काउंट्स ही बताने होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो प्लीज अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको वहां पे क्विजेस मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो ये जो है ये एक और आपका है, ठीक है। इसको प्लीज आप अभी थोड़ी देर सोचो क्या है यहाँ पर, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर है void insert, ये वाला स्टेटमेंट है, फिर फॉर लूप लगाया हुआ है यहाँ पर, एंड these are all the statements। तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो एंड सोचो, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको, प्लीज सोचो।
सो आई होप आपने सोच लिया होगा दीज आर द टोटल स्टेप्स। तो प्लीज आपके यहाँ से अगर मैच हुए ना आंसर्स तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है। देखो ये 0 टाइम्स, ये भी 0 टाइम्स, ये जो है यहाँ पर ये n+1 टाइम्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख लो ना क्या कंडीशन है। देन ये जो ये n टाइम्स होगा, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, एंड दैट इज द थिंग विच विल बी कमिंग आफ्टर कंप्लीट टोटल, ठीक है। नाउ asymptotic notations, तो ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। मैं लास्ट बोलने जा रही थी, so this is सेकंड लास्ट, asymptotic notations। तो क्या होती है asymptotic notations? तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं। एक तो आता है बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन, ठीक है। तो क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। asymptotic notations are languages that allow us to analyze an algorithm's running time by identifying its behavior as the input size for algorithm increases, and this is also known as an algorithm's growth rate, ठीक है। तो algorithm के ही इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ algorithm रिलेटेड ही कर रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया है ना। तो मतलब सिंपली हम क्या करते हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशन से कैलकुलेट करते हैं रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। जो हमने अभी देखा हमने पीछे ये बेस्ट केस, एवरेज, ये देखो यहाँ पर ये बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस है ना, ये 3 केसेस अभी हमने देखे। तो बस वही केस क्या करने हैं यहाँ पर आपको, देखो कॉमनली यूज्ड असिम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर बिग ओ नोटेशन है, ओहम नोटेशन है और थीटा नोटेशन है, ठीक है। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन बताता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है पर्टिकुलर एल्गोरिथम की, ठीक है ना। तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। एक और बार आप डेफिनेशन रीड करो, आपको समझ में आएगा। These asymptotic notations are languages that allow us to analyze an algorithm's running time, ठीक है। एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम की रनिंग टाइम जो है ना, उसको एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम asymptotic notations को यूज करते हैं by identifying its behavior as the input size for the algorithm increases, ठीक है। So this is also known as what, algorithms growth rate। तो ये इसको algorithms growth rate भी बोला जाता है, clear। So asymptotic give us the ability to answer these questions following are the commonly used asymptotic notations। तो बस ये 3 चीजें हैं जो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ओ, इसको ना सब क्या बोलते हैं, या तो 0 बोल देते हैं या तो ओ बोल देते हैं। प्लीज इसका करेक्ट नाम है बिग ओ नोटेशन। क्या है इसका करेक्ट नाम? बिग ओ नोटेशन। ये क्या करता है अभी पता चल जाएगा। बस अभी के लिए आप सिंबल याद रखो, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। चलो अब आगे आ जाते हैं बिग ओ नोटेशन पे, ठीक है। सो बिग ओ नोटेशन में क्या है, द नोटेशन बिग ओ एन इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम। कुछ समझ में नहीं आया? देखो एकदम सिंपल बताती हूँ। वर्स्ट केस देखा था यहाँ पर वर्स्ट केस का मतलब क्या था, मैक्सिमम टाइम, है ना, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो बस मैक्सिमम टाइम जो अगर आपका है ना, अगर वर्स्ट केस है तब हम उसको क्या लिख देते हैं, बिग ओ से डिनोट कर देते हैं। समझ में आ गया? देखो अब आप सेकेंड लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इट मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द एल्गोरिथम दैट कैन पॉसिबली टेक टू कंप्लीट। समझ में आ गया क्या किया क्या नहीं किया? बहुत सिंपल है। वर्स्ट केस जो है, बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको मेजर करने का काम आपका बिग ओ नोटेशन है, ठीक है। मतलब मेजर करता है, लेकिन हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज योर बिग ओ नोटेशन, ठीक है। तो इधर सिर्फ चीज याद रखनी है आपको, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सिर्फ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आपको ध्यान, यार क्या बन रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। क्या है? सिर्फ वर्स्ट केस समझ लेना, ठीक है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करता है बिग ओ। समझ में आ गया? अब ओमेगा नोटेशन। ओमेगा का तो आपको पता है सिंबल क्या होता है ना, ओहम्स लॉ सबने पढ़ा हुआ है। सो द नोटेशन ओमेगा इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड। देखो अब यहाँ पर क्या है, लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, लोअर बाउंड, और यहाँ पर क्या है, अपर बाउंड, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पर लोअर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम, इट मेजर्स द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपका ओमेगा नोटेशन से डिनोट होता है। समझ में आ गया? तो इधर आप ध्यान में रखो क्या है, बेस्ट। ये देखो क्या बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, बेस्ट केस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये है आपका वर्स्ट केस, ये है आपका बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और द बेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अब बेस्ट पता ही है, अभी देखो वापस बताने की जरूरत क्या है, लेकिन मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। एवरेज का भी अभी से बता के चलो, तो एवरेज टाइम, ठीक है। चलो
ओमेगा नोटेशन हो गया, थीटा नोटेशन। देखो अब थीटा नोटेशन क्या है, फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस बोथ द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन है। अदरवाइज आप सिर्फ ऐसे समझो कि एवरेज टाइम, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपको समझ लेना है कैसे, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब आपका आता है। देखो ये आपको समझ में आता होगा, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ सिंपली आपको क्या मिल रहा है, दोनों के बीच का एवरेज मिल रहा है ना, सो दैट इज द थिंग, एंड इसको आपको डिनोट करना है थीटा से। समझ में आ गया, थीटा से डिनोट करना है, बस समझ में आ गया कितना किया, कैसे समझ में आ गया, सारे नोटेशंस एंड ऑल। बस देखो कॉमन असिम्प्टोटिक नोटेशन, फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सम कॉमन असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट की स्टेप काउंट कितना होता है, कांस्टेंट का स्टेप काउंट होता है 1, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, बिग O 1, ठीक है, बिग O 1। अब बिग O क्या है, बिग O है एकदम वर्स्ट आप अगर कॉम्प्लेक्स केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो, है ना। अब लॉगरिथमिक के लिए क्या है, लॉगरिथमिक के लिए भी क्या है, आपकी बिग O है एंड उसका स्टेप काउंट होता है log n, ठीक है। तो देखो स्टेप काउंट का जो भी है ना प्रोसीजर, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं या तो न्यू वीडियो उसके लिए एक पर्टिकुलर सिर्फ डेडिकेटेड स्टेप काउंट के लिए बना दूंगी, अदरवाइज आपको सारे टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगी हर वो स्टेप काउंट, ठीक है, जो भी है मतलब किसका क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इफ एल्स का, फॉर का, तो जो मेरा हैंड रिटन है वो तो मैं आपको डालूंगी, अदरवाइज मैं और सर्च करके भी आपको डाल दूंगी, ठीक है। तो प्लीज इसके लिए टेंशन मत लेना, पीपल गेट वेरी कंफ्यूज्ड इन स्टेप काउंट, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज वेरी सिंपल। आपको अगर एग्जीक्यूशन पता होगा एंड पीपल हु नो डीबगिंग, है ना, तो उनको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। लीनियर जो है उसको भी हम बिग O से रिप्रेजेंट करते हैं एंड n होता है उसका स्टेप काउंट, n log n है तो भी उसको बिग O से डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर O लगा देना है, बिग O लगा देना है, विच इज डिनोटिंग वर्स्ट केस और बेस्ट केस और योर एवरेज केस, ठीक है। तो ये इसीलिए ये नोटेशंस को यूज किया जाता है ताकि हमें पहले से ही पता चल जाए क्या कि पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मतलब क्या कैसी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट है, बेस्ट है या एवरेज है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो ये देखो, ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पर स्टेप काउंट, ठीक है। तो ये जो काउंट प्लस प्लस होता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई ये ऐसा हो रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग फ्रॉम लैपटॉप, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। चलो ये जो है काउंट प्लस प्लस, तो इसका जो स्टेप काउंट है वो होता है आपका 1, ठीक है, ये होता है आपका 1, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, अब ये जो है देखो फॉर, ये आपका क्या है, इक्वल टू n i ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है कि ये कैसी कंडीशन है, फॉर लूप तो है लेकिन अंदर कंडीशन भी मैटर करती है ना, कंडीशन भी मैटर करती है। तो इंट i इक्वल टू n से स्टार्ट हो रहा है एंड i इज ग्रेटर देन 0 एंड i इज डिविजिबल इक्वल टू 2। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है, डिवाइड इन हाफ वाला है ना, देखो फ्रेमवर्क में आपको इसका समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपका आता है log n, ठीक है। देखो अब जो मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेस देन n है, लेस देन n है, यहाँ पर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इफ कंडीशन है यहाँ पर इफ कंडीशन है, तो यहाँ पर आप इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देख लो, देखो फिर ये ऐसे ही हो गया। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जब आप देखोगे इसका तो क्या होगी, यस n होगी, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स ये इफ है, राइट। तो यहाँ पर फॉर और इफ यूज हुआ है एंड यहाँ पर जो है आपको आंसर मिल जाएगा जो कि मैंने आपको पूछा था अभी, एंड जिन्होंने मतलब इसको कर लिया है ना तो प्लीज मतलब बहुत ज्यादा खुश होंगे मैं उन लोगों से जिन्होंने पहले ही कर लिया। अदरवाइज ये है आपका आंसर जो कि नेस्टेड वाला मैंने पूछा था, क्योंकि 2 फॉर होंगे तो n स्क्वायर आएगा, 3 फॉर होंगे तो n क्यूब आएगा। समझ में आ गया, तो दिस इज द थिंग। अदरवाइज ये आपको अगर ये वाली स्लाइड समझ में नहीं आया ना तो प्लीज इसको छोड़ दो, क्योंकि इतना ज्यादा इसका अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, एंड यस आपने कवर कर लिया है यूनिट 1, एंड प्लीज मुझे बताना कि आपको कॉलेज में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड मेरे चैनल से कितना ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज, जैसे कि हमने टॉपिक का नाम, हमारे यूनिट का ही नाम इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम था। इतना एल्गोरिथम तो हमने पीपीएस में भी नहीं पढ़ा जितना हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम अपने एफडीएस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यही चीज है, आपको हर चीज बेसिक से लेके जानी है, तब भी जो है आप एकदम सुपीरियर एडवांस पर्सन बन पाओगे। सो द थिंग इज दैट। तो चलो, एल्गोरिथम स्ट्रैटेजीज, एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रैटेजीज आर द जनरल अप्रोचेस यूज्ड टू डेवलप एफिशिएंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं टू बिल्ड अ पर्टिकुलर
बेस्ट एल्गोरिदम फॉर एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने 6 बताई हुई है, लेकिन इतनी नहीं पढ़नी है। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या है, देखो डिवाइड एंड कॉन्कर, ये है आपकी पहली। यार ऐसा क्यों हो रहा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो नहीं, अच्छा आगे बढ़ गई मैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ समझ लो। ठीक है, मैं यहाँ पर पेन नहीं चला रही हूँ, समझ लो। डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। तो इसका तो मतलब हमें वैसे भी जनरल नॉलेज में पता है, हमने इंग्लिश के पेपर दिए उसमें भी हमें पता है। डिवाइड एंड कॉन्कर इज द फर्स्ट एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या आ जाता है, अगर भाई आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है ना, तो अगर आपका बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर लो, उसको डिवाइड कर लो, शॉर्ट छोटे छोटे पार्ट्स, चंक्स के अंदर डिवाइड कर लोगे ना, तो आप उस छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर अगर वर्क करोगे एंड देन उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कंबाइन कर दोगे, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, उसके बाद है आपका मर्ज सॉर्ट। ठीक है, सॉर्टिंग तो पता है ना सबको, सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग होती है असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट को, या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना किसी भी एलिमेंट्स को। सो दैट इज द मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, तो ये मैंने सॉर्टिंग के बारे में आपको बताया। मर्ज सॉर्ट यानी कि अलग अलग सॉर्टिंग करने के बाद उसको मर्ज कर देना। ठीक है, देन यू हैव रिकर्सिव एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। सो दीज ऑल आर योर algorithmic strategies। तो अगर आपको लिस्ट आउट करने आया, सो यू कैन लिस्ट आउट दिस, बट इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के अंदर वो देख लेते हैं। तो बहुत साफ साफ हमारे जो सिलेबस दिया हुआ है ना एसपीपीयू की तरफ से, वहां पर डिवाइड एंड कॉन्कर एंड ग्रीडी स्ट्रैटेजी को लिखा हुआ है। तो प्लीज इसको अच्छे से फोकस करना, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड आई कैन बेट अगर आपने ये नहीं भी पढ़ के गए होगे तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको परफेक्ट लिखना है अपना आंसर। लिख तो सकते हो लेकिन मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने परफेक्ट वो की पॉइंट्स नहीं लिखे हुए होंगे, है ना। तो प्लीज अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, एंड इन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच द प्रॉब्लम इन हैंड इज डिवाइडेड into smaller subproblems and then each problem is solved independently. When we keep on dividing the subproblems into even smaller subproblems, we may eventually reach a stage where no more division is possible. ठीक है, those atomic या फिर आप smallest possible subproblems are solved, the solution of all subproblems is finally merged in order to obtain the solution of an original problem. Simply है वही जो मैंने अभी आपको बोला, वही यहाँ पर जो है बड़े बड़े पैराग्राफ के अंदर लिख दिया है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। चाहो तो ये फ्लो चार्ट दिखा दो, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा। प्रॉब्लम को आपने क्या किया, डिवाइड किया सब प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, सोल्यूशन मिला टू द सब प्रॉब्लम, सोल्यूशन मिला टू द सब प्रॉब्लम, दोनों जगह है ना। अब उन दोनों को आप कंबाइन कर दो तो आपको उसका पर्टिकुलर जो फाइनल सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो यही होता है क्या, ये स्टेप है डिवाइड एंड ये स्टेप है कॉन्कर। ठीक है, चलो अब डिवाइड एंड कॉन्कर के क्या है, ऑपरेशंस हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। ठीक है, तो डिवाइड करना यानी कि ब्रेक कर देना उस प्रॉब्लम को इनटू सब प्रॉब्लम्स ऑफ सेम टाइप। एंड देन कॉन्कर का मतलब क्या है भैया, कॉन्कर का मतलब है प्रोसेस करो, कैलकुलेशन करो, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिकर्सिवली सॉल्व दिस सब प्रॉब्लम। देन कंबाइन, कंबाइन यानी कि जो भी सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिले उसको कंबाइन कर दो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उस प्रॉब्लम का। नाउ फॉलोइंग एल्गोरिथम्स आर बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजीज। अब कौन सी एल्गोरिथम्स आपके डिवाइड एंड कॉन्कर पे वर्क करती हैं। सो एक तो मर्ज सॉर्ट हो गया। ठीक है, मर्ज सॉर्ट। देन बाइनरी सर्च होता है। मर्ज सॉर्ट भी पता है हमें। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हम कोई ना कोई लिस्ट के अंदर नंबर है ना, उसको बाइनरी मतलब सर्च करते हैं बेसिकली, और ज्यादा कुछ नहीं है। क्विक सॉर्ट यानी कि अगर आपको असेंडिंग आपका एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल अगर सपोज आपका इधर से उधर है, लाइक 1 2 3 4 5 होना चाहिए था, 1 3 2 4 5 है, असेंडिंग में करना है, सिर्फ 2 और 3 की रिप्लेसमेंट करनी है आपको। तो दैट इज डन इन क्विक सॉर्ट। क्लोजेस्ट पेयर, टावर ऑफ हेनॉय। ठीक है, सो ये मतलब 5 हैं आपके क्या एल्गोरिथम्स विच आर बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर। आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको और डीप नॉलेज लेनी है तो जस्ट सर्च कर लो एक एक एंड उनका शॉर्ट देख लो यूट्यूब के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा।
मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट क्या है? अब मर्ज सॉर्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो मर्ज सॉर्ट क्या है? एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम ही है। इट डिवाइड्स इनपुट एरे इन टू हाफ्स, calls itself for the two halves and then merges the two sorted halves. The merge function is used for merging. ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि merge function को यूज किया जाता है for merging the two halves. The merge array LMR. तो चलिए ये चीजें आपको नहीं समझ में आई तो ये वाला जो डायग्राम है प्लीज इसको अच्छे से देखो। ठीक है, हाउ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क्स इंटरनली। ठीक है, कैसे ये वर्क करता है इंटरनली। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देखो, डिवाइड द एरे इनटू टू पार्ट्स। ये पूरा का पूरा एक एरे था, ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा एक एरे था। समझ में आ गया? इसको रफ कर देती हूँ। ये पूरा एक एरे था, इसको मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये चलो ये इस केस में क्या था, 7 थे, है ना, तो इसको डिवाइड करते टाइम 4 और 3 का ही कॉम्बिनेशन बन सकता था, तो मैंने 4 और 3 में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या करूंगी मैं, अब मुझे एक जो है ना ये वाली लिस्ट, इसको मुझे देखना है। ठीक है, इसको मुझे देखना है एंड इसको अब मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगी 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड कर दूंगी 2 पार्ट्स के अंदर, तो मुझे क्या मिला, ये दोनों मिले। अब इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, तो अब जैसे कि इस केस में 3 है तो मैं 2 और 1 में ही डिवाइड कर पाऊंगी। क्लियर? अब 38 और 27 में मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर मुझे करना है असेंडिंग ऑर्डर में अपने लिस्ट को या फिर एरे को मतलब कंबाइन करना है। ठीक है, तो 38 और 27 में क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा, तो आपका है क्या मतलब यस यहाँ पर है 27। अच्छा, ये क्या किया है, सिंपली ये 38 और 27 को सेपरेट कर दिया है, ये वाले स्टेप में सेपरेट कर दिया। 43 को 3 को सेपरेट कर दिया, 9 को 82 को सेपरेट कर दिया, 10 को 10 को सेपरेट कर दिया, बेसिकली चारों को सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पर 38 और 27 में देखो कौन सा फर्स्ट आता है आपका, तो 27 फर्स्ट आता है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया। 27 को फर्स्ट लेकर 38 को बाद में लिखा। 43 और 3 में फर्स्ट आएगा आपका 3 एंड देन आएगा 43, तो इनको ऐसे कंबाइन किया है। 9 और 82 में फर्स्ट है 9, 82 ऐसे, तो इन दोनों को ऐसे कंबाइन किया। 10 तो एज इट इज है तो वो ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इन दोनों में देखो सबसे छोटा नंबर जो है वो पहले आएगा, तो 3 पहले आएगा, उसके बाद 27 आएगा, उसके बाद 38 आएगा और उसके बाद 43 आएगा। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक मतलब छोटा सा मेरा पार्ट बन गया एरे का। 9, 82, 10 को अगर मैं करूँ तो 9 पहले 10 बाद में एंड देन 82, तो दिस विल बी द थिंग। एंड द लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर देंगे, ये पूरे दो जो एरे है ना इनको कंबाइन कर देंगे। एंड जैसे ही कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर 3 पहले आएगा, 9 पहले बाद में आएगा, फिर 10, देन 27, देन 38, देन 43 एंड देन 82। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक कि हम कैसे मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द एल्गोरिथम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, तो ये होता है मर्ज सॉर्ट के अंदर। टावर ऑफ हेनॉय, द लास्ट थिंग ऑफ दिस यूनिट, टावर ऑफ हेनॉय ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है। ठीक है, तो ये एक पजल है, मैथमेटिकल पजल आप इसको कह सकते हो, वेर वी हैव 3 रॉड्स एंड डिस्क, यानी कि 3 रॉड होती हैं एंड आप कितने भी डिस्क ले सकते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पजल इज टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर रॉड, यानी कि एक रॉड में आपका पूरे के पूरे प्रेजेंट है ना। देखो ये एक रॉड में आपके प्रेजेंट है, देखो इसको आपका क्या मतलब एम क्या है आपका, कि इसको आपको या तो मतलब जो रॉड बची है ना उनके अंदर आपको इसको ट्रांसफर करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये आपके जो ऊपर वाली जैसे जो साइज में छोटी है ना वो हमेशा ऊपर रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ी है ना उसके ऊपर ही उसकी छोटी होनी चाहिए, जो छोटी है उसके ऊपर बड़ी नहीं होनी चाहिए डिस्क। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पजल इज टू, ये तो मैंने बता दिया, ओबेइंग द फॉलोइंग सिंपल रूल्स, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। एक बार में आपको एक ही डिस्क को मूव करना है। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट टू ऑन top of the another stack, that is a disk can only be moved if it is the uppermost disk on the stack. ठीक है, no disk may be placed on top of a smaller disk। इसका मतलब देख लो, यहाँ पर टावर ऑफ हेनॉय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 डिस्क हैं। ठीक है, ए बी सी हमारी रॉड है, यहाँ पर 3 डिस्क हैं। मुझे क्या करना है, मुझे जो छोटा वाला है ना वो किसी बड़े के ऊपर ही रखना है ना, उसी बड़े के ऊपर ही छोटा वाली डिस्क आएगी, छोटे वाली डिस्क के ऊपर बड़ी वाली डिस्क नहीं आएगी। और क्या कंडीशन है कि मुझे एक बार में एक ही डिस्क को उठा के रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, पहले स्टेप में मेरा जो ये ग्रीन वाला है ना मैंने उसको सी में डाल दिया, ग्रीन वाले को सी में डाल दिया। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में मैंने ये जो ब्लू वाला था ना उसको उठा के बी वाले में डाल दिया। ठीक है, मैं सी में तो डाल नहीं सकती थी ना क्योंकि फिर वो छोटे के ऊपर बड़ा हो जाता,
क्लियर ना। अब मेरे पास क्या हो गया, ये ऐसे हो गए, इस फॉर्मेट में हो गए। अब मुझे क्या ऑप्शन है, मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं ये वाले को या तो इधर डालूं या तो इधर डालूं, लेकिन मैं इसको कहाँ डालूंगी, इसके एकदम फ्रीक्वेंट बड़े वाले के पास डालूंगी। ठीक है, तो ये सी को उठा के मैंने बी में डाल दिया। अभी तक क्लियर। अब मैं ए को बी के ऊपर तो डाल नहीं सकती हूँ ना, ऑफकोर्स वो कंडीशन ही नहीं है कि मुझे छोटों के ऊपर बड़े को डालना है ना। तो उसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मैं उसको सी में डालूं, है ना। अब इन दोनों को उठा के हम इसमें नहीं डाल सकते। कभी आप बोलो कि इस दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दो, आपका सॉर्ट हो जाएगा, नहीं, आपको एट अ टाइम एक ही डिस्क को उठाना है। तो अब मैं वापस से बी वाले को उठाऊंगी तो मैं ए में डालूंगी, क्योंकि मैं सी में डाल दूंगी तो वो अलग हो जाएगा, राइट। तो बी में डाल दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरा जो बी वाला है उसको उठा के सी में डाल दूंगी, एंड द लास्ट स्टेप ए वाले को उठा के सी में डाल दूंगी। तो क्या हो गया, आपका ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर बल्क था वो आपके दूसरे रॉड में ट्रांसफर हो गया। सो दिस इज नथिंग बट टावर ऑफ हेनॉय। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि एक मैथमेटिकल पजल है ना, एंड पजल्स यूजुअली बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सो दिस इज द थिंग विच कम्स इन डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ ग्रीडी स्ट्रैटेजीज, ठीक है, तो वो डिवाइड एंड कॉन्कर का लास्ट था, ग्रीडी स्ट्रैटेजीज भी पढ़ो। ग्रीडी स्ट्रैटेजी क्या है, देखो सबसे बेसिक चीज आपको पता होगी ना तो बहुत समझ में आ जाएगा आपको ग्रीडी स्ट्रैटेजी। जैसे ही आया ना, एक चीज ध्यान में रखो, सबने उबर, ओला, रैपिडो ये सब चीजों को यूज किया हुआ है ना। तो जैसे ही आप अपने लोकेशन डालते हो एंड आपका डेस्टिनेशन डालते हो, सर्च करते हो, तो वैसे ही आपको मतलब जो भी आपके मतलब आसपास जो भी कैब वाले होंगे ना, तो उन ड्राइवर्स के पास चला जाता है नोटिफिकेशन, लेकिन उनके पास नहीं जाएगा जो कि बहुत दूर है ना, उनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके टाइम रिक्वायर्ड जो है, आपको 1-2 मिनट में ही आपको कैब चाहिए होती है, तो वो नहीं आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं, जो आपके पास होंगे वही। तो ये क्या होती है, ये ग्रीडी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ठीक है, ये ग्रीडी स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि जो क्लोजेस्ट मतलब सोल्यूशन है ना वो ही आपको मिलता है, ताकि आपका जो सोल्यूशन मिले आपको उसका वो एकदम परफेक्ट ऑप्टिमम हो। ठीक है, इसको रीड करो। एन एल्गोरिथम इज डिजाइन टू अचीव ऑप्टिमम सोल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। इन ग्रीडी एल्गोरिथम अप्रोच डिसीजंस आर made from the given solution domain, ठीक है। As being greedy, the closest solution that seems to provide an optimum solution is chosen, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम क्या थी कि आपको मतलब जाना है ना, अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, तो आपको जो सोल्यूशन होगा वो कैब ड्राइवर होगा, तो वो जितनी ज्यादा क्लोजेस्ट होगा उतना ज्यादा आपको क्लोजेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। सो दैट इज द ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल्स इसके ये हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नेम है लेकिन इनका काम एक ही है, देख लो। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, प्रिम्स मिनिमल स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, क्रुस्काल्स मिनिमल स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, डिक्स्ट्रास मिनिमल स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, नैपसैक प्रॉब्लम, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। सो दीज आर ऑल द थिंग, ठीक है। आप इसमें से 1-2 भी याद रख लोगे, अगर एग्जाम्पल सपोज पूछा है तो आप दे सकते हो। ये जो है ये आपका एक एग्जाम्पल है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर आया सपोज तो आप एक एग्जाम्पल तो एक्सप्लेन करना ही। प्रिम्स और क्रुस्काल्स एल्गोरिथम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिम्स और क्रुस्काल है ना, ये मिनिमल स्पैनिंग के अंदर आ जाते हैं। तो देखो, the cost of the spanning tree is the sum of the weights of all the edges on the tree. There can be many spanning trees. Minimum spanning tree is the spanning tree where the cost is minimum among all the spanning trees. So there also can be many minimum spanning trees. इसका मतलब क्या है? तो ये जो आपको ग्राफ दिया है ना, मैंने यहाँ पर ये समझो। देखो, आप तो बोलोगे यार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब सेम ही तो लिखा है, डिफरेंस क्या है? तो देखो, ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें कहीं भी डायरेक्शंस नहीं है। ये है स्पैनिंग ट्री, इसमें यहाँ से सपोज यहाँ से आप जा रहे हो इधर, यहाँ से इधर जा रहे हो, यहाँ से इधर जा रहे हो, लेकिन ये जो एजेस है ना, ये एजेस का वेट दिया हुआ है आपको 1 4 5 2 3, है ना। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको मिनिमम स्पैनिंग ढूंढनी है, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ढूंढनी है, यानी कि देखो आप जैसे इधर जाओगे, इससे 4 + 5 + 2 है ना, 4 + 5 + 2 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो ये तो बेटर नहीं लग रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इधर जा रहे हो, यानी कि 4 + 1 + 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इज इट द मिनिमम, है ना, ये मिला ना आपको मिनिमम। देखो अब यहाँ से भी जाओ अगर आप, तो 5 + 2 + 1 तो क्या मिलेगा आपको, 7 ही मिलेगा, राइट। सॉरी 5 + 2 + 1 8 मिलेगा आपको, है ना। तो इसमें भी क्या है, ये आपका आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखो, आपका जो कॉम्बिनेशन में आपको मिनिमम स्पैनिंग मिलेगी ना, सो दैट इज द मतलब सोल्यूशन फॉर यू। सो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बता रहा है ये वाला एल्गोरिथम। तो ये क्या है, ग्रीडी स्ट्रैटेजी नहीं है, यानी कि आप अगर एकदम शॉर्ट वाली स्पैनिंग ढूंढ रहे हो, मिनिमम स्पैनिंग ढूंढ रहे हो, तो ये ग्रीडी स्ट्रैटेजी नहीं है।
बस वही चीज है. सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको. एंड योर यूनिट 1 इज कंप्लीटेड ओवर हियर. जिसमें आई नो कि थोड़ी ज्यादा थ्योरी चीजें थी, लेकिन आपको समझना है. बस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ एक और चीज, कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेप काउंट के अंदर डिफरेंस होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेप काउंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है. कभी कभी आपको बोल दिया जाता है कि कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टेप काउंट, तो उसमें आप क्या करोगे. तो देखो स्टेप काउंट जो है, स्टेप काउंट कैसे मिला आपको. सपोज यहाँ पर आपको 2n+3 या 2n+4 मिला है ना. 2n+4 अगर मैं समझू, या 2n, चलो 2n+3 मैं समझ लेती हूँ. ठीक है, तो वो होते हैं आपका स्टेप काउंट. 2n+3 होता है आपका स्टेप काउंट. लेकिन आपको अगर कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है तो 2n+3 में, यहाँ पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो प्लीज मैं ट्राई कर लेती हूँ लिखना, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि होगा. वो देखो 2n+, यहाँ अरे यार छोड़ो, 2n+3 के बारे में मैं बात कर रही थी. तो 2n+3 में बेसिकली क्या होगा. 2n+3 में आपको सिंपली ये करना है, जितने भी कांस्टेंट्स है ना, जितने भी कांस्टेंट्स हैं. 2n+3 में कितने कांस्टेंट्स है, 2 कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट है. उनको हटा दो, जितने भी नंबर है या कांस्टेंट्स है उनको हटा दो. बचा क्या आपका n, बचा क्या आपका n. वही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है. समझ में आ गया, वही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है. एक और एग्जांपल लेते हैं. 2n² + 2. ये 2n² + 2 आपका स्टेप काउंट है. इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे. डेफिनेटली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n², क्योंकि जो भी नंबर्स है वो आपको निकाल देने है ना. 4n+3 कॉम्प्लेक्सिटी होगी n. n² कॉम्प्लेक्सिटी होगी n² ही. n² + 1 + 2, 1 + n² + 1 + n, क्या होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी. n² + n होगी. ठीक है, n³ + 2n + 1 क्या होगी इसकी, n³ + n होगी. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेप काउंट में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो ये इधर बताने से रह गया था, अच्छा वो मेरे दिमाग में आ गया एंड मैंने बता दिया यहाँ पे. सो आई होप कि पूरा यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टेप काउंट का मैं आपको डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैं आपको डाल दूंगी. तो प्लीज वो सॉल्व करने की कोशिश करना. आपको सारे जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, उनके स्टेप काउंट क्या होते हैं वो भी बता दूंगी. तो एग्जाम से जाने से पहले प्लीज देख लेना. ये जो है ना, ये एक बार यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या है. एंड ये भी समझ में आ गया होगा. तो ये क्या है, आपके थ्योरी क्वेश्चन है. ये आ गए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जाते हैं. एंड कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप काउंट भी आता ही है. ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई. एल्गोरिथम ये सब बस यही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं. बहुत इजी आपका यूनिट था. आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स देके इसको कंप्लीट करा है. बहुत ज्यादा मैंने एक ही दिन में इसको कवर किया. आई डोंट नो अब ये वीडियो आपको कब मिलेगी, लेकिन हाँ एक ही दिन में मैंने पूरे यूनिट 1 का कंप्लीट किया है. आई होप आप पार्ट 1 देख चुके होगे एंड अब पार्ट 2 ही आपका कंप्लीट हो गया. तो कांग्रेचुलेशंस, आपने यूनिट 1 अपने FDS का कंप्लीट कर लिया है. ऐसे ही अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज डू फॉलो एंड प्लीज आप मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ. ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को एंड प्लीज अपनी ये जो रीच है ना इस चैनल की, इसको बढ़ाओ. अदरवाइज मोटिवेशन नहीं आएगा एंड अगर मोटिवेशन नहीं आएगा तो आपके लेक्चर्स रुकेंगे, मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है. तो प्लीज. एंड हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट, टेलीग्राम. ठीक है, तो आपको टेलीग्राम प्राइवेट चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिल जाएगी उसके ऊपर. एंड उधर जाके आप वो एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर आप जब फिलअप करोगे थिंग्स एंड एक आपको QR कोड मिलेगा, स्कैन कर देना एंड जो भी पेमेंट है उसको पे करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्सेस आपके टेलीग्राम चैनल का. ठीक है, तो प्लीज वहां पर ज्वाइन कर लेना. सारे के सारे जो नोट्स हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे. एंड ऐसा मत सोचना कि ये तो PPT है मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा. ये PPT भी मिलेगी आपको, लेकिन आपको और इंपॉर्टेंट हैंड रिटन एंड एक्सक्लूसिव जो नोट्स है ना वो वहां पर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये थिंग्स सारी हो गई इसकी. तो प्लीज आपको प्लीज समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना. कोई भी डाउट डिफिकल्टी है छोटी सी भी है तो प्लीज कमेंट में बता देना, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. एंड दैट्स ऑल फॉर द डे. इसको वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि कंसिस्टेंट रहो. अभी से पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा. एंड लैंग्वेजेस पर फोकस करना, जितनी ज्यादा आप स्किल सीखोगे ना उतना ईजी है. एंड आई विल से कि आप C++ सीखो. एंड लास्ट वीडियो में मैंने बोला था अगर आपको C++ के पार्ट्स चाहिए कुछ, मतलब स्टार्टिंग से अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए ना मेरा, तो मैं रोज एक ट्यूटोरियल डालने के लिए तैयार हूँ. लेकिन आपका वहां से मुझे मतलब आपके साइड से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, तभी मैं वो चीज कर पाऊंगी. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे. एंड बस इतना ही बोलूंगी. आप गूगल फॉर्म जो है उसको फिल कर देना. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपका यूनिट कंप्लीट होता है, वाइंड अप हो जाता है. नो मोर थिंग्स इन दिस. बस इतना ही करना, इतने ही रिवाइज करना, इतने ही में ही पेपर देने
करने चले जाना, आपको इस यूनिट के कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आप अगर अच्छे से करोगे तो। प्रैक्टिस करना बस आपको एक ही पॉइंट पे है, स्टेप काउंट और कॉम्प्लेक्सिटी के, ठीक है। बाकी और कहीं भी आपको सिर्फ एल्गोरिथम हमें आता है, फ्लो चार्ट आता है, सब कुछ आता है, जहाँ पर भी हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया होता, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चलिए बाय।